Good morning, everyone. I think everybody has joined. Should I start? Okay, so yesterday we have seen different types of processes. Am I audible to everybody? Okay. Okay. Yesterday we have what are the different types of processes? Isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic. Okay, now today we'll start with the next process, which is called as reversible process. Okay. What is this reversible process? See, in this case, they have said, suppose I want to go from point A to point Z. So what is reversible process? Any process that has been conducted in such a way that driving force, what is driving force? When I'm moving in the forward direction, it is called as driving force. And when I'm reversing it, it is called as opposing force. Okay? So at every stage, driving force is only infinitesimally, okay, infinitesimally, oh sorry, infinitesimally greater than opposing force. Infinitesimally means very small, okay, it's very small. So driving force is only infinitesimally greater than opposing force, and process can be reversed back. कैसे करेंगे process reverse? Just by increasing the slight increase in the opposing force. That is called as reversible process. See what I'm saying? Any process that has been conducted in such a manner that driving force is only infinitesimally greater than opposing force, and at every stage process can be reversed back by slight increase in the opposing force. Suppose you're moving from A to B. B पे आने के बाद you feel no, I want to go back. You can reverse it back. Suppose you came to E. Again you feel no, I want to go back. You can reverse back just by increasing into the opposing force. So that kind of reaction is called as reversible reaction, reversible process. So definition क्या है basically? This term is very important. Infinitesimally or infinitesimally small number. Infinitesimal means it will be very smaller in case. Okay. So driving force is only infinitesimally greater than opposing force, and you can reverse back your process just by increasing to the opposing force. That is called as reversible process. सबको समझा? And this is possible at each and every step. So there are some characteristics of reversible process. पहला तो क्या है? Driving force and opposing force are differ only by infinitesimal. ठीक है? Next is process can be reversed back at any stage. Not necessarily आप Z पे पहुंच के भी उसको reverse back कर सकते हो. ठीक है? Reaction takes place very slowly, very slowly. You are going here, again you are coming back. You are going here, again it will come back. You are going here, again it will come back. So here it is called as the process takes place very slowly. It involves infinite number of steps. It involves infinite number of steps. Infinite number of steps means you are seeing over here it is A to B, B to B, ऐसे रहेगा. ठीक है? And then after the completion or after every step, the process attains mechanical equilibrium.
What is this mechanical equilibrium? Suppose I am going to A to B, थोड़ी देर रुकेंगे फिर पीछे आ जाएंगे, ठीक है, वापस से B to C गए, थोड़ी देर रुकेंगे, वापस से पीछे आ जाएंगे. So that is called as mechanical equilibrium. Again I am repeating, what is reversible process? Any process that has been conducted in such a manner that your driving force means your reaction proceeding force, ठीक है, only infinitesimally greater than opposing force, and at every stage you can reverse back your process just by increasing to the opposing force, ठीक है, तो at every stage it is possible to come back to the original position. Clear? Then what are these characteristics? First is driving and opposing force are differing just by infinitesimal amount. Second thing, the process takes place very slowly. It involves infinite number of steps. Okay, and after every step, it attains mechanical equilibrium. Fifth process, समझा सबको अच्छे से? Mega, is it clear now? Any questions, बच्चों? ठीक है, चलो लिखो. Heading लिखो, reversible process. इक्विलिब्रियम का नहीं समझा, मैकेनिकल Equilibrium means what? See, suppose I am going from A to B. Correct? You are moving in with the driving force. Correct? Now you are going to stop for few seconds. Again you will come back. Again you are going. Again you will come back. Again you are going. Again you will come back. So जो आप रुकते हो for a moment, that is called as mechanical equilibrium. अभी आप थोड़ा आगे जाओगे, you will stop, then you will come back. You will go, you will come back. तो थोड़ा रुकेंगे ना बीच में. So that is called as mechanical equilibrium. मतलब एकदम ऐसा नहीं हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चले. ठीक है, so it takes place very very slowly and it involves infinite number of steps. You cannot say this reaction or this process takes place within 2 days, 3 days. ऐसा नहीं है. और कितना 2 steps में हो गया, 5 steps में हो गया, ऐसा नहीं है. It involves infinite number of steps and it is very very slowest process. Now understood? Yes. यस मिस. हाँ चलो लिखो. अभी हेडिंग लिखो बच्चों. प्रोसेस नंबर 5, रिवर्सिबल प्रोसेस. I will just give you a definition. Features तुम लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेना, ठीक है? Then I will start with the next part. Reversible process. लिखो. Any process that has been conducted. Any process that has been conducted in such a way that at every stage driving force is only infinitesimally, देखो spelling, infinitesimally means very very small, infinitesimally greater than opposing force, and reaction can be reversed back by slight increase in the opposing force, and reaction can be reversed back by slight increase in the opposing force is called as reversible process. मैम स्लाइट इंक्रीज इन Slight increase in the opposing force. Any process that has been conducted in such a way that at every stage
driving force is only infinitesimally greater than opposing force, and process can be reversed back by slight increase in the opposing force. Okay? By slight increase in the opposing force. क्लियर बच्चों? इसके जो फीचर्स है that you can refer page number 65, वही लिखा हुआ है. Driving force and opposing force are infinitesimally differ by each other. At every stage, process can be reversed back. Process takes place very, very slowly. ठीक है? It takes place in the infinite number of steps. लिखना है अभी? नहीं लिखना नहीं है. एग्जाम्पल मेगा आप कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस ले सकते हो. सपोज आई विल टेक हियर अ सिलेंडर. ठीक है? इन दिस आई विल टेक अ गैस और ये रहा मेरा पिस्टन. सो हियर आई एम हैविंग अ गैस. अभी आप कैसे अप्लाई करोगे ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स देखो, आप ऐसे थोड़ा सा नीचे किया, so what gas will do? It will exert the pressure, it can go back. Again you are applying, it can go back. So driving force and opposing force are very smaller with each other. आपने एकदम धड़ाम करके डाल दिया तो फिर क्या हो जाएगा? उसको रिवर्स लेके जाना बहुत मुश्किल है. So what I am doing here, very little driving force, very little opposing force. Driving, opposing, like that. So process keeps on continuing. That is why it involves infinite number of steps and it is very, very slowly. Is it clear now? I hope I have answered your question. Understood? So just a cylinder and in that you have to put. अभी हम लोग इसमें जो भी पढ़ रहे हैं ना सब gaseous state पढ़ने वाले हैं. ठीक है? So should I proceed बच्चों? Okay. Now just pay attention and later on you write it. पहले let me explain you properly. Next is nature of heat and work. So what you're going to say? In closed system, ठीक है, exchange of energy takes place in two ways. First is either by heat, second one as a work. ठीक है, जो exchange होता है energy, that is in the form of either as heat or in the form of work. ठीक है, so that is called as what? Nature of heat and work. ठीक है, तो one by one we will see. Now first of all, if I will say W is equals to force into displacement. Am I right? Mega, please mute yourself, beta. So we are writing over here work is equals to force into displacement. इसको हम बोलेंगे mechanical work. ठीक है? We are going to say this as mechanical work. But when you're talking about this type of process, क्या बोला मैंने? We have a cylinder. In this, I have a gas. I will insert the piston and continuous process is taking place, right? So in that case, whatever the work is done is called as pressure volume work. ठीक है? Pressure volume work. Pressure volume क्यों? क्योंकि you are going to apply the pressure और आपको शायद पता होगा ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, pressure and volume are inversely proportional. इसको बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं, याद है? Pressure and volume are inversely proportional. So that is called as pressure volume work. बराबर? अब देखो, प्रेशर क्या रहता है? फोर्स अपॉन एरिया. ये फॉर्मूला है प्रेशर का. तो मैं क्या करूंगी अभी यहाँ पे प्रेशर की जगह पे क्या लिखूंगी? सॉरी, फोर्स अपॉन एरिया इनटू V. इफ D is the distance or the length, तो क्या हो जाएगा अभी ये? F upon D square into D cube. Yes or no?
So d square and d cancelled. You will get F into d, which is nothing but W. The mechanical work or pressure volume work almost same hai, correct? So you are just proving over here that mechanical work and pressure volume work is nothing but the same thing. Again, I am repeating. Nature of heat and work in a closed system. Exchange of energy takes place either as heat or as work. So mechanically, work can be written as work is equals to force into displacement. Barabar? But here, whatever the work we are observing is called as pressure volume work. What is the formula for pressure? Force upon area, and volume I have written as it is. If I will say d is the distance, तो ये क्या बन जाएगा? एरिया है ना, एरिया में क्या हो जाएगा? d स्क्वायर हो जाएगा. वॉल्यूम क्या हो जाता है? d क्यूब. d square and d square cancelled. You will get F into d, which is nothing but W. आया समझ में? So pressure volume work and your mechanical work is nothing but the same thing. ये एकदम basic part था. ये सबको समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो. Don't write anything. I will give you time to write. Have you all understood this part? Just give me a quick yes. Everybody understood? Okay. ठीक है, चलो. अभी मैं आपको कुछ नई चीज पढ़ाने जा रही हूँ, which is very very easy and interesting also. एक मिनट. अभी आप देखो. हाँ, what I am doing. I am taking over here H2O2, hydrogen peroxide. It will dissociate in the form of water and oxygen. Here it is in the liquid state, oxygen in the gaseous state. This is also in the liquid state. I have not balanced the equation. ठीक है? मैंने क्या किया? अभी देखो क्या हो रहा है इधर पे. I have taken a beaker or a cylinder. In this I have taken H2O2 और मैंने यहाँ पर क्या किया? पिस्टन लगा दिया. थोड़ी देर के बाद मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आपका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चला गया. क्यों हुआ ऐसे? ये जब रिएक्शन हुआ ना, अंदर H2O2 था, अंदर पिस्टन यहाँ पे था. आफ्टर सम टाइम piston moved upward. Why? Why it has Due moved to the upward? evolution of gas O2. Very good. Perfect answer. Very good. See, because it was in the liquid state initially. बराबर है? But when the decomposition takes place, after that, water and oxygen gas will form. तो जैसे ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी, ऑक्सीजन गैस थोड़ी है पिस्टन का प्रेशर बर्दाश्त करने वाली है. What it will do? It will push the piston towards the upper side. So can I say this is a system? And system से आपका पिस्टन धक्का मार के सराउंडिंग की तरफ आ गया. समझ रहे हो बच्चों what I'm saying? This is your system and your piston is coming out into the surrounding. तो आप लिखोगे when the work is done by the system. When the work is done by the system is always negative work done. याद रखना. सिस्टम छोटा है ना, सराउंडिंग बड़ा है, तो सिस्टम कुछ भी काम करेगा तो इट विल बी ऑलवेज नेगेटिव. इतना क्लियर हो गया? व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव. और आई कैन से वर्क डन ऑन द सराउंडिंग. खाली वर्ड्स का ऑन और बाय पे ध्यान दो. वर्क डन ऑन द सराउंडिंग विल बी नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव. ठीक है? अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ. आई विल टेक अमोनिया गैस. ठीक है? देन आई विल टेक ओवर योर HCl गैस. आफ्टर सम टाइम आई विल गेट अमोनियम क्लोराइड. अब हम यहाँ पे वापस से सेम चीज करेंगे. आई विल टेक अ पिस्टन एंड सिलेंडर. अभी इस केस में मेरा पिस्टन और सिलेंडर ऊपर की तरफ था और थोड़ी देर के बाद वो नीचे की तरफ आ गया. क्यों हुआ ऐसे? क्यों हुआ ऐसे? This we got in the solid state. Why is it happening? मीन्स अभी वो प्रेशर कंबाइन बढ़ हो गया गया ना है. वो तो. Very good.
बिकॉज ये दोनों कंबाइन हो जाए। गैस जो है कंबाइन हो गए ना, हाँ। अभी कंबाइन होके सॉलिड हो गए, तो गैस है ही नहीं ना प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए, तो पिस्टन का जो पोजीशन था वो नीचे की तरफ आ गया। तो अब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सराउंडिंग ने धक्का दे दिया सिस्टम को। यहाँ पे क्या हो हाँ गया था, मिस। सिस्टम ने धक्का दे दिया था सराउंडिंग को। तो अब लिखेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम or by the surrounding will be always positive work done. ये दोनों पॉइंट समझा? Work done by the system negative, work done on the system positive, work done by the surrounding positive, work done by the work done on the surrounding on the system it will be positive. आया समझ में? Again I am repeating, work done by the system नेगेटिव, सिस्टम छोटा है ना, तो सिस्टम कुछ भी करेगा तो नेगेटिव रहता है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सराउंडिंग इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, सिस्टम के ऊपर काम हुआ तो क्या है वो पॉजिटिव। यस और नो? यस मिस। हाँ, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम is positive, work done on the surrounding will be negative. समझा? तो अगर आप, तो मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सराउंडिंग will be negative work done. Work done by the surrounding or on the system with the positive. ये सबको समझा अच्छे से? इस तरह से क्या हो रहा है पता है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ हीट। अंडरस्टूड? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्या करते हैं, बताती हूँ मैं तुम लोगों को, एक इक्वेशन है W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, फिर उससे पूछते हैं बताओ वर्क डन इज बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो अगर मेरा वर्क का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आई विल से वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये पार्ट क्लियर हुआ क्या बच्चों? पहले इतना बोलो, किसको नहीं समझा फील फ्री टू आस्क। चलो अभी क्या करेंगे, ये वर्क वाली बात हो गई। मैंने क्या बोला, देयर इज एक्सचेंज एज अ हीट एंड द वर्क, so this is about work and work done is always a path function। याद रखना, वर्क और हीट दोनों भी पाथ फंक्शन है। क्यों है पाथ फंक्शन है? क्योंकि मैंने बोला ना, एक गया फिर ऊपर गया, एक गया फिर ऊपर गया, तो इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। ऐसे नहीं है कि हो गया, वी आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी स्टेप। तो वर्क डन एंड हीट दे बोथ आर पाथ फंक्शन। अब देखो, हाँ अब मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट डू इट एज अ हीट। आई विल टेक अ बीकर, in this beaker I will take NaOH and I will put some amount of water। ध्यान दे दो बच्चों, एकदम सिंपल है। जब आप NaOH पानी में डिसॉल्व करते हो, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस और बहुत हीट बाहर आता है। आपने घर पे चूना देखा होगा ना, चूना पहले पुराने जमाने में घर को पेंट करने के लिए यूज होता था, पता है? ईंट की दीवारें होती थी और उसके ऊपर ऐसे सब एशियन पेंट, नेरोलैक, ये सब नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, चूना लेके आते थे, उसको पानी में डालते थे, उसको थोड़ा सा कुछ ऐसे कलर्स मिक्स करके वही लगा देते थे। गांव साइड में आपने देखा होगा। So when you are going to put tuna into the water, which is calcium carbonate, it is giving you highly exothermic reaction. तो वैसा ही सेम रिएक्शन यहाँ पे होता है, your beaker will become hot. So can I say system is releasing the heat to the surrounding? Yes or no? System is releasing the heat to the surrounding. Yes or no? क्योंकि मैंने जब बीकर हाथ लगाऊंगी तो गर्म लगेगा ना, तो heat is released by the system will be always negative। मैंने क्या बोला, सिस्टम कुछ भी करेगा तो नेगेटिव। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव। अब मैंने क्या किया देखो, हाँ इसी बीकर में एक आइस बात लगा दिया। आइस बात मतलब एक पतीली ली, उसके अंदर बहुत सारा आइस रखा और इसके अंदर रख दिया। अब क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब ये आपका सराउंडिंग है
और ये आपका सिस्टम है. So heat absorbed by the system, positive. Or you can say heat released by the surrounding, positive. तो आप क्या लिखोगे? Heat released by the system, negative. Heat absorbed by the system, positive. Clear हो गया? Is it very clear to everyone? Miss, can you repeat once? Yes. What I said here, we are having this NaOH and water. So when you are going to put this into the water, it will give you highly exothermic reaction. So I can say that heat is released by the system. So whatever is done by the system will be negative. So it will be minus Q. Okay? But if I'm going to put this into the ice bath, what is happening here? They all will absorb the heat. So I will say heat absorbed by the system will be positive. क्योंकि सराउंडिंग हीट दे रहा है ना, तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सिस्टम हीट दे रहा है तो वो नेगेटिव रहेगा. सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव रहेगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव रहेगा. अंडरस्टूड? एक छोटी सी चीज क्या ध्यान में रखनी है, जो भी सिस्टम करेगा वो नेगेटिव वर्क हो या हीट, और जो भी सराउंडिंग करेगा वो पॉजिटिव वर्क हो या हीट. क्लियर? इज Yes, इट ma'am. वेरी क्लियर? सबको समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? चलो, तो अभी तुम लोग है ना इतना सब पंचायत मत लिखो, जस्ट राइट डाउन साइन कन्वेंशन, डायरेक्टली लिख दो. ठीक है? साइन कन्वेंशन में क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम. लिखो, पहले हेडिंग लिखो. क्या लिखेंगे? हेडिंग क्या था, एक बार मुझे देखने दो. नेचर ऑफ हीट एंड वर्क. पहले लिखो हेडिंग, नेचर ऑफ हीट एंड वर्क. In a closed system, in a closed system, energy is exchanged. Energy is exchanged either as heat or as work. Either as heat or as work. ये वाला इक्वेशन कॉपी कर लो फटाफट. W is equals to force into displacement mechanical work, but the work done is pressure volume work, the force upon area into V. तो जस्ट कॉपी डाउन दिस. इसका जो प्रॉपर स्टेटमेंट है ना बाद में लिखाऊंगी, ये सिर्फ ऐसे समझने के लिए है. जस्ट कॉपी डाउन दिस. हो जाएगा तो डन लिखो चैट बॉक्स में. Okay, done. I think most of the people have done. ठीक है, इजी था एकदम ये. चलो टर्न करती हूँ पेज. अभी लिखो साइन कन्वेंशन. Write down the heading, sign convention of work and heat. Sign convention of work and heat. Now write down first point. Work done by the system. Work done by the system or on the surrounding is negative work. Second statement क्या आएगा बच्चों? Work done on the system. Work done on the system or by the surrounding. आपको वर्ड समझ में आ रहा है?
work done on the system or by the surrounding is Positive. positive. Correct. Next line. Point number 3. Heat released by the system. Heat released by the system is क्या रहेगा? Heat released by the system. मिस वो साइन कन्वेंशन के अंदर ही लिखना है. हाँ, yes. Point number 3. Heat released by the system is negative Q. आपके बुक में ना पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q लिखा है, तो वैसा लिखेंगे तो भी चलेगा. स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिखो, दोनों भी करेक्ट है. Heat released by the system is negative. Next statement क्या आएगा? Heat Absorbed by Absorbed is by the system Positive. is positive. क्या रहेगा? Positive. Very good. Heat absorbed by the system is positive. उसके नीचे लिखो note, very very important. Work and heat are path functions. Work and heat are path functions. Ma'am, can you repeat the note? Work and yes. Work and heat Work and heat are path functions. Work and heat are path functions. याद रखो. तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? पहले इतना बोलो, क्योंकि अभी मैं एक एक्सप्रेशन सिखाने जा रही हूँ. Is it very clear to you all? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे. हाँ, अभी पेन सब नीचे रख दो. अभी मैं पहले एक्सप्रेशन सिखाती हूँ, वो सीखो, बाद में लिखो. Now this question can be asked for 2 to 3 marks. Expression for pressure volume work. एक सेकंड, मैं जरा क्लिप लगा दूं. इधर गया. Expression for pressure volume work. Just pay attention first. Expression for pressure volume work. अब pressure volume work किसका रहता है? गैस का रहता है ना. So what I will say now, पहला वाला वापस से लिखने का. Mechanical work can be written as, कैसे लिखेंगे? W is equals to force into displacement. ठीक है, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, मैकेनिकल वर्क डन. बट अभी देखो हो रहा क्या है यहाँ पे बच्चों, कि आई हैव अ सिलेंडर, इन दिस आई हैव अ गैस ना. तो क्या होता है, आप यहाँ से प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के चुप बैठने वाली है. गैस जवाब में वापस से प्रेशर अप्लाई करेगी ना, तो कैन आई से इट इज अपोजिंग फोर्स. तो अगर यहाँ पे प्रेशर P है तो ये उल्टा प्रेशर हो जाएगा माइनस ना. तो हम लोग क्या लिखेंगे? अपोजिंग वर्क. और अपोजिंग वर्क कैन बी रिटन एज W is equals to minus force into D. Yes or no? माइनस क्यों हो गया? क्योंकि अपोजिट फोर्स है अभी. इट इज एन अपोजिंग फोर्स. ये स्टेप समझा सबको? Yes or no? हेलो. Yes, ma'am. यू आर अप्लाइंग प्रेशर. गैस क्या करेगी जवाब में? वापस प्रेशर अप्लाई करेगी. दैट इज अपोजिंग फोर्स. अभी हम लोग को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. बराबर. Therefore, force is equals to pressure into area. Correct? अब ये जो प्रेशर है, that pressure can be written as external pressure. क्योंकि दोनों प्रेशर सेम नहीं है ना. आ रही है बात समझ में? Pressure is equals to force upon area. Therefore, force is equals to pressure into area. But this pressure is external pressure. अब इसको हम लोग इधर लिखेंगे. तो मेरा इक्वेशन कैसे हो जाएगा?
W is equals to minus P external into A into D. इतना समझा कि नहीं? पहले इतना बोलो. Is it clear? Ma'am, please repeat. आप लोग एकदम ध्यान से अच्छे से सुनो तो एकदम अच्छे समझ में आएगा. What I said, pressure is equals to force upon area. So what is force? Force is equals to pressure into area. सिर्फ मैंने क्या चेंज किया यहाँ पे? This pressure is written as external pressure because it is your opposing force. So I have just substituted here. Clear? Now what is this A into D? This A into D is nothing but change in volume. क्योंकि A क्या है? एरिया, D square, और ये D तो क्या बन गया? Volume. So it is called as change in volume. So this expression now can be written as W is equals to minus P external into delta V. And what is this delta V? Minus P external is nothing but V2 minus V1. So in short, आप लिख सकते हो W is equals to minus P delta V. This is called as expression for pressure volume work. This is called as expression for pressure volume work. वापस से देखो, एकदम सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए आता है. Derive the expression for pressure volume work. Mechanical work done can be written as force into displacement. ठीक है? So opposing work or opposing force can be written as minus force into D. So what is P? Force upon area. So force will be pressure into area. इसको इधर substitute कर दिया. What is A into D? Nothing but change in the volume क्योंकि area होता है D square और ये होता है D. So it is called as change in the volume. अभी यहाँ पे substitute करो. What is delta V? V2 minus V1. So in short, W is equals to minus P delta V, which is called as pressure volume expression. ठीक है? अब मेरा सवाल ये है, there are two conditions. ठीक है? First condition, condition number 1. ठीक है? When, if, I will write out if V2 is greater than V1. चलो, if V2 is greater than V1, W पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव. नेगेटिव आएगा. So I will write down work done will be negative. So it is done by the system or on the system? बाय द सिस्टम. Very good. It will be work done by the system. आया समझ में? Condition number 2. What is condition number 2? Now V1 is greater than V2. यहाँ पे V1 बड़ा है, V2 छोटा है. अब क्या आएगा? W पॉजिटिव के नेगेटिव? Positive. Positive. Very good. W is equals to positive. So work is done by the system or on the system? On the ऑन द system. Very good. Work is done on the system. हो गया. Difficult लगा कि समझ आया अच्छे से? Is it simple बच्चों? Everybody understood this expression? ये आता है एग्जाम में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो नहीं समझा है तो अभी पूछ लो. समझ आ गया अच्छे से? ओके, चलो लिखो अभी. लिखो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क. पहले इतना लिखो. ये दिख रहा है ठीक से? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन, दिख रहा है क्या या ऊपर पकड़ू? ऊपर पकड़ थोड़ा के क्यों लेफ्ट नहीं में दिखा लो. है? हाँ ठीक है. फिर ये कैसे लिखोगे? यहाँ पे लिख देती हूँ. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. देयरफॉर फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया. और ये वाला पार्ट है, इधर छूट गया था इसके लिए इधर वापस से लिखा. मैम कॉपी कर डायग्राम लो. ड्रॉ करने का क्या? किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है. और मींस इसको ये एकदम एज इट ऐसे, इज पूरा लिखना है. यस यस एज इट इज पूरा लिखना है, एकदम सिंपल. और ये एग्जाम में पूछते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. लिख लो इतना, हो जाएगा तो डन लिखो.
मिस नीचे लो ना कैमरा। बस दिख रहा है? मिस मेरा ऊपर का थोड़ा लेफ्ट हो गया। रुको मैं ऊपर ही पकड़ती हूँ, तुम लोग लिख लो अच्छे से। अभी दिख रहा है? एक्चुअली हाँ ऊपर मिस। लिया ना तो बहुत ऐसे हिलता है, इसलिए मैं ऊपर नहीं पकड़ती। चलो ठीक है, लिख दो। मिस वो मिस प्रेशर का लास्ट में लिखना है कि वर्क के बाद लिखना है? क्या वाला? हाँ, वर्क के बाद जैसे ही P लिखने इज का ना। इक्वल टू F। यस यस, W इज इक्वल टू माइनस F इंटू डी लिखा ना, उसके बाद लिखो कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू एरिया, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। मिस समझा कंडीशन जो मैंने? आपने दी है वो ऐसे ही लिखने का है एज इट इज। यस 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 यस, एज इट इज। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, दे विल गिव यू सम नंबर्स, दे विल गिव यू प्रेशर, दे विल आस्क यू कमेंट वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। ऐसे 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सिंपल है ये चैप्टर, ही बहुत सिंपल है। आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? इजी है ना, इंटरेस्टिंग भी है। ओके डन। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अभी मेरा एक सवाल है तुम लोगों के लिए। बहुत ही सिंपल सा और लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका बहुत ही लॉजिकल आंसर दे दो। रेडी? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन प्रेशर अप्लाई कर रहा है ना, तो इफ आई एम राइटिंग W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, सॉरी अच्छे से लिखती हूँ, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, अगर मैंने प्रेशर ही हटा दिया, व्हाट इज माय क्वेश्चन? इफ आई विल रिमूव प्रेशर, मतलब ये जो पिस्टन का ढक्कन था ना, ढक्कन ये हटा दिया मैंने, व्हाट विल बी वर्क डन? जीरो मिस। वेरी जीरो होगा। गुड, परफेक्ट आंसर। इट विल बी जीरो because there is no pressure, so work pressure is zero, so work done will be zero. इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन, है ना? फिर तो गैस क्या अपनी मर्जी की मालिक किधर पे भी जाएगी। इट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। समझ आ गया? एकदम सिंपल था। आई होप टिल नाउ इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो लिख दो वहां पे, Yes, if pressure is equals to zero, work done is also zero, it is called as free expansion। बस इतना लिख दो। if pressure is equals to zero, W is also zero, it is called as free expansion। चलो हो गया ना? शाम को लॉगबुक लेके आना। हाँ, इसके ऊपर हम लोग इसके बाद अभी एक मैक्सिमम वर्क डन करेंगे ना, उसके बाद सम सॉल्व करेंगे। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट। अभी ना हम लोग यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। चलो मेरे साथ ही लिख दो, ये कुछ है नहीं, खाली कन्वर्जन्स है और जो आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। सो राइट इट विथ मी एंड मार्क इट एज इम्पोर्टेंट। यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, चलो लिखो। 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर per second square is nothing but 1 पास्कल मीटर क्यूब। ये याद ही कर लेना, ठीक है?
And what is 1 Pascal? It is nothing but 1 kilogram per meter per second square. ये पहला कन्वर्जन है. उसके बाद 1 bar is equals to 10 raised to 5 pascals. एक मिनट ना, मेरा स्टैंड हिल रहा है, एक मिनट जरा रुको. 1 bar is equal to 10 raised to 5 pascals, which is nothing but, अभी देखो ना, पास्कल मतलब क्या हो गया ना, तो अब क्या लिखेंगे, it will be 10 raised to 5 kilograms per meter per second square. उसके बाद लिखेंगे 1 dm cube bar is nothing but dm cube. और बार का वैल्यू क्या था, अब भी लिखा हम लोगों ने, कितना था, 10 raised to 5 था ना, 10 raised to 5 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 raised to -3 से, so into 10 raised to 5, मतलब फाइनली कितना आ गया, 100 जूल्स. समझा, 10 raised to -3 मतलब 10 raised to 2 हो गया ना, 5 में से 3 गया तो 2 मतलब 100. समझा, ये कन्वर्जन फैक्टर है. और एक लिखो जो नहीं दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, 1 liter atmosphere is equals to 1.013 joules. ये भी लिख के रखो. 1 liter atmosphere is nothing but 1.103 joules. हो गया इतना, लिख लो अच्छे से. कुछ इसमें कुछ समझ जैसा है नहीं, याद करना है बस. एक मिनट रुको जरा, मैंने ये पीछे किया है तो एक मिनट रुको. आई एम सर्चिंग समथिंग, एक मिनट, लेट मी कंफर्म. एक मिनट हाँ बच्चों. बच्चों थोड़ा करेक्शन करो, इट इज 101.32. मैंने 1 पॉइंट लिख दिया था, इट इज 101.32. वही मुझे डाउट था तो वही चेक कर रही थी. 1 liter atmosphere is 101.32 joules. हो गया. अब हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, which is expression for maximum work done. Ready everybody? Ready? Yes, miss. हाँ ठीक है. अभी हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन. अभी एकदम ध्यान दो, कुछ मत लिखो, जस्ट पे अटेंशन. क्या लिखा है, अरे बाबा मैं क्या लिखा हुआ है, 2 ना, तो इट्स फाइन. अगर आपने 5 नहीं लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर से पढ़ा नहीं है चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में. हाँ संचिता, 6.0222 into 10 raised to 23 होता है ना, तो आप क्या लिखते हो, 6.023 into 10 raised to 23 लिखते हो ना. इसके आगे वाला सब इनसिग्निफिकेंट फिगर है. इफ यू वांट यू कैन राइट इट. चलो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सप्रेशन. कुछ मत लिखो, जस्ट पे अटेंशन. एक्सप्रेशन फॉर W max मतलब मैक्सिमम वर्क डन. पहला चीज, मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्जर्व्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस. क्यों ऐसा,
क्यों मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्जर्व्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस? क्योंकि अभी थोड़ी देर आपने पहले किया कि प्रोसेस इज अ स्लोएस्ट स्टेप एंड इट टेक्स प्लेस इन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बराबर ना? infinite number of steps मतलब it is very very slow and it is giving you a maximum work done. Clear? This is the first reason for that. Secondly आपने क्या बोला था, याद है? लिखा था नोट में, work is a path function. Work is a इस वॉइस नहीं आ रहा है। यस मैम, आवाज नहीं आ रही। I don't know how it got. पता नहीं कैसे एंड हो गया था। आ गए ना सब लोग? तुम लोग का भी एंड हुआ था क्या मीटिंग? नहीं मिस, नहीं हुआ? अच्छा, मेरा मीटिंग ही एंड हो गया था, शायद नेटवर्क गया रहेगा। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू, देखो हाँ, आई विल टेक अ सिलेंडर। अब इसमें मैंने क्या लगा दिया? पिस्टन लगा दिया, ठीक है? और इसके अंदर क्या है? गैस है, ठीक है? थोड़ी देर के बाद पिस्टन का पोजीशन थोड़ा ऊपर हो गया, फिर और थोड़ी देर के बाद पिस्टन का पोजीशन और थोड़ा ऊपर हो गया। क्यों हो रहा है ऐसे, बताओ मुझे? बिकॉज देयर इज अ गैस इज एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द पिस्टन। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल टू फाइनल लेते हैं, तो v2 माइनस v1 लिख देते हैं। मतलब इनिशियली इट वाज v1 एंड फाइनली इट वाज v2। इस केस में हम लोग क्या करें, हर एक स्टेप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ रहेगा? dv। कितना प्रेशर चेंज हुआ रहेगा? dp। फिर यहाँ से यहाँ कितना वॉल्यूम चेंज हुआ रहेगा? dv। कितना प्रेशर चेंज हुआ रहेगा? dp। आ रहा है समझ में? जब आप डायरेक्ट लिखते हो, मतलब v2 टू v1, इट इज ऑलवेज डेल्टा v। डेल्टा v मतलब पूरा इनिशियल टू फाइनल। बट व्हेन यू आर राइटिंग dv और dp, इट इन्वॉल्व्स, इट इज योर पाथ फंक्शन। इतना समझा? पहले ये बोलो, ये समझ आया? वी आर ऑब्जर्विंग हियर ईच एंड एवरी स्टेप। आई एम नॉट ऑब्जर्विंग के पहले यहाँ था और फाइनली ऊपर पहुंच गया। आई एम नॉट ऑब्जर्विंग इन दैट वे। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, पहले थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर गया, काइंड ऑफ थिंग, एंड प्रोसेस कीप ऑन कंटिन्यूड। बराबर है? तो अगर मैंने यहाँ से डायरेक्ट फाइनल लिख दिया होता तो मैं डेल्टा वी लिखती और डेल्टा पी लिखती, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन। बट हियर इट इज नॉट अ डायरेक्ट कन्वर्जन, यू आर ऑब्जर्विंग हियर ईच एंड एवरी स्टेप। जब ईच एंड एवरी स्टेप पढ़ते हैं तो वी आर राइटिंग हियर dv and dp। dv is small change in the volume and dp is small change in the pressure। इतना क्लियर हो गया? अब एक्सप्रेशन देखो, हाँ बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को इंटीग्रेशन आता है ना, तो फिर आ जाएगा। मतलब मुझे तो नहीं आता है, बट फिर भी मुझे ये थोड़ा बहुत पता है। एक मिनट रुको, मेरा पेट शायद खत्म होने वाला है। ठीक है चलो, अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो द एक्सप्रेशन दैट, अभी किया थोड़ी देर पहले, w इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है? अब मैं इसको क्या करूंगी, आई एम स्टडिंग अ पाथ फंक्शन ना बच्चों, सो व्हाट आई विल राइट डाउन, dw इज इक्वल टू माइनस पी dv। इतना क्लियर? पी dv मतलब ये एक्सटर्नल था, तो हियर एक्सटर्नल, ये स्टेप समझा? w इज इक्वल टू p एक्सटर्नल dv डेल्टा v। पर अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, इट्स अ पाथ फंक्शन, सो dw इज इक्वल टू माइनस p एक्सटर्नल इनटू dv। अब देखो हाँ, p एक्सटर्नल क्या रहता है? p एक्सटर्नल इज नथिंग बट p minus dp। कैसे आया ये? p is your normal pressure and dp is nothing but your change in the pressure। What I said, p is your normal pressure, जो आपका गैस अप्लाई कर रहा है, ये गैस आपके पिस्टन ने अप्लाई किया नॉर्मल प्रेशर, आपके गैस ने अप्लाई किया थोड़ा सा प्रेशर, तो उन दोनों का डिस्टेंस इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल प्रेशर। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस इनटू दिस। एकदम ध्यान दो,
dw इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं अभी, p माइनस dp इंटू dv। अब मल्टीप्लाई करो, dw इज इक्वल्स टू p dv माइनस dp इंटू dv। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, एक मिनट, मेरा कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा मैं माइनस ही लिखना भूल गई, तो माइनस भी आएगा ना, समझा क्या? माइनस भी आएगा, माइनस पी माइनस डीपी, और ये तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस। अभी समझा? माइनस साइन भूल गई थी मैं। अब हम क्या लिखेंगे, दिस चेंज dp into dv is very small, therefore it is negligible। देखो ना चेंज कितना था, प्रेशर और वॉल्यूम का कितना कम रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क उसका, बिकॉज इट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ना ये, तो इट इज नेग्लिजिबल। सो आई विल जस्ट राइट डाउन dw is equals to minus p dv। यहाँ तक किसको नहीं समझा पहले पूछ लो, इज इट वेरी क्लियर? Yes, चलो ma'am. अभी, हाँ अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स। इंटीग्रेशन आता है, मैथ्स में हुआ है कि नहीं? No, ma'am. अच्छा ठीक है, इंटीग्रेटिंग मैं बताती हूँ, छोटा सा थोड़ा सा बताती हूँ। विद इन द लिमिट्स v1 टू v2 एंड 0 टू w max। अभी इंटीग्रेशन तुम लोग को थोड़ा मेरा यार, मेरा एयरपोर्ट का चार्जिंग खत्म हो गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना बच्चों प्लीज। हेलो बोलो। हेलो। ठीक है चलो, अभी तुम लोग को मैं इंटीग्रेशन बताती हूँ कि क्या रहता है। सर आपको पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है समिंग, समिंग ऑफ द स्टेप्स। आई विल से आई वांट टू गो फ्रॉम ए टू जेड। मैंने मेरी लिमिट सेट कर दी, मुझे जाना कहाँ से कहाँ तक था, पॉइंट ए टू जेड जाना था, इट इज माई लिमिट। तो मैं कैसे जाऊंगी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ई एफ, पूरा हर एक स्टेप लिखते बैठूंगी क्या, गड़बड़ होएगा ना। तो उसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन, विच इज अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं ए टू जेड, समझा? दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, मतलब समिंग ऑफ ऑल द स्मॉल स्टेप्स इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। आया समझ में? ऑलवेज इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू सेट अप योर लिमिट। अब हमेशा लिमिट बनाओगे ना कि आपको माहिम स्टेशन से माटुंगा स्टेशन जाना है, so it is your limit, you have to set up the limit। so what is that? आप माइम से गए, थोड़ा आगे बढ़े, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, हर स्टेप का थोड़ी लिख सकते हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू से, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर, इनिशियल टू फाइनल। आया समझ में? दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो अभी यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने अपना लिमिट क्या सेट किया है कि मेरा वॉल्यूम है v1 टू v2 और वर्क डन हो जाएगा 0 टू w max। आई हैव टू इंटीग्रेट दिस, ये समझा? अब मैं कैसे लिखूंगी देखो, हाँ ये वाला इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 टू w max, इट इज dw इज इक्वल्स टू माइनस p को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन v1 टू v2 इंटू dv। इतना समझा? और एक मिनट है, इसके पहले एक और स्टेप करना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई वो। Do you know that pressure volume, sorry, PV is equals to nRT? So what I will write down here, V is equals to nR, क्या लिखना था मुझे, सॉरी P लिखना था, P is equals to nRT by V। आ रहा है समझ में बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? ये इंटीग्रेशन ऐसे रहने दो, dw is equals to minus P dV। So what I am going to write down, PV is equals to nRT, ideal gas equation। So I will write down here P is equals to nRT by V। Can I substitute this into equation number 1? So what I will get now, dw is equals to minus nRT by V
into dv। अभी समझा ये स्टेप के वापस से बताओ, did you understand this? I've just substituted the value of p minus nRT upon v। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन is 0 to w max, that is dw, that is equals to minus nRT, again integration v1 to v2 dv by v। यहाँ तक समझा के नहीं समझा, पहले इतना बोल दो मुझे। Is it very clear? वापस से बताती हूँ, देखो what we have seen, w is equals to minus p delta v। तो हम लोग अभी पाथ फंक्शन ले रहे हैं, तो dw is equals to minus p dv। ठीक है, अभी p एक्सटर्नल कैसे लिख सकते हैं, p minus dp, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस टर्म इज नेग्लिजिबल, ये हो गया। अब ये स्टेप के बाद ना, इंटीग्रेशन बाद में लिखना, ये स्टेप के बाद हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT। So what is my P? P is nothing but nRT by V। Substituting this into this equation, we will get dW is equals to minus nRT by V into V। उसके बाद लिखना, हाँ, integrating within the limits V1 to V2 and 0 to W। कर दिया इंटीग्रेशन, इतना क्लियर है सबको? Say yes or no please। Yes. यस पक्का? मिस। हाँ, अभी क्या है फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का? देखो मैंने क्या लिखा है अभी यहाँ पे, आई हैव रिटन dw इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन लिखा था ना, 0 w, वही इक्वेशन वापस लिख रही हूँ, माइनस nRT इंटीग्रेशन v1 to v2 dv by v। अभी ना इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेटिंग लिमिट a to b dx by x is nothing but ln x a to b। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जब भी सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे ना तभी आपको आएगा ये सब। क्या फॉर्मूला है, लिमिट्स a to b dx by x, तो ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस e, पता है ना, ये a to b जाएगा। अभी ये फॉर्मूला इधर अप्लाई होगा कि नहीं, dx by x की जगह पर क्या है, dv by v है, तो मैं ln v a to b की जगह v1 to v2 लिखूंगी। समझ रहे हैं सबको? तो व्हाट आई विल राइट डाउन, अभी यहाँ पे क्या करने का पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का। एक मिनट, ब्लर हो गया क्या? हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। व्हाट इज योर अपर लिमिट, w max, so I will write down here w max minus 0 is equals to minus nRT ln v v1 to v2। ये फॉर्मूला इधर अप्लाई किया, बोलो क्लियर? देख लो क्लियर हो गया सबको? चलो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस आई कैन रिटन एज w max is equals to minus nRT। लॉग का रूल क्या है, अभी वापस से क्या लिखेंगे, ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा ln v2 माइनस v1, मतलब w max is equals to minus nRT ln v2 upon v1। yes yes I will repeat everything, don't worry, वापस से मैं पूरा एक लिखूंगी, don't worry। which step you want me to repeat मेगा? which step? ये फॉर्मूला वाला? हेलो, you can unmute yourself and say। मिस ये लास्ट वाला क्या कैसे किया वो बताओ ना। बताती हूँ, एक मिनट, Last इंटीग्रेशन वाला ना, देखो इंटीग्रेशन का ये स्टेप समझा के हम लोगों ने लिमिट सेट किया, हाँ लिमिट सेट किया 0 w max माइनस nRT, ये अभी ना फॉर्मूला है ये हाँ मिस इंटीग्रेशन, जब वो चैप्टर समझा मिस, पढ़ोगे ना, ये लास्ट लाइन, हाँ रुको रुको बस लास्ट रुको लाइन लो, नहीं। रुको, ये फॉर्मूला वाला नहीं समझा, रुको, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जब भी आपको सर सिखाएंगे ना तभी शायद से मुझे लगता है 200-300 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ऐसे फॉर्मूला है। तो ये वन ऑफ द फॉर्मूला है जिसमें dx by x इज नथिंग बट ln x a to b था, तो मैंने ये फॉर्मूला को इधर अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया, dx by x की जगह पर क्या था, dv by v, तो ln लिखूंगी मैं, लिख दिया, यहाँ पे x लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी v, यहाँ पे a to b लिखा है तो मैं क्या लिखूंगी v1 to v2। अभी समझा मेगा? हाँ मैम। हाँ
चलो अब रूल क्या रहता है पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का। तो अपर लिमिट डब्ल्यू मैक्स था, लोअर लिमिट 0 था, बराबर। देन आफ्टर दैट माइनस एन आर टी एल एन, वापस से क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख दिया, ठीक है। अभी डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग ही होता है ना। तो लॉग जब हम लोग लिखते हैं, अच्छा तुम लोग को चाहिए तो एक और स्टेप लिखो इधर, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन। याद है लॉग जब भी अप्लाई करते हैं और नेगेटिव होता है तो डिवीजन रहता है, डिवीजन में हम लोग नेगेटिव लॉग लिखते हैं ना, और मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव लिखते हैं, याद आया कि नहीं। तो वही लिखा मैंने इधर पे, समझा। अब है ना बच्चों, मुझे ये एल एन नहीं चाहिए, नेचुरल लॉग नहीं चाहिए। ln मतलब होता है log to the base e exponential. If you want to convert it to log to the base 10, you have to multiply by the factor log to the base 10 2.303. ये फिक्स्ड फैक्टर है, याद ही रखो। तो अब मैं क्या करूंगी, w max is equals to minus 2.303 nRT। ln की जगह आप क्या लिखेंगे, log to the base 10 v2 by v1। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर डब्ल्यू मैक्स। वापस बोलती हूँ, सी ये समझा स्टेप, एल एन लॉग है ना, लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन। सो वॉट इट इज नेगेटिव, मतलब इट विल बी इन द डिविजन। अभी मुझे एल एन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू लॉग टू द बेस 10, बिकॉज अपना लॉग टेबल कौन से फॉर्म में है, log to the base 10 के फॉर्म में है। so I want to convert it to into this, बराबर। तो अभी कैसे लिखेंगे, W max is equals to माइनस ऐसे लिख दिया 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। क्लियर। अब आपको पता होगा अगर at constant temperature, एक और इक्वेशन है, at constant temperature P1 V1 is equals to P2 V2, 11th में किया था। तो V2 by V1 is nothing but P1 by P2. All are agreed with this. V2 by V1 is nothing but P1 by P2, है ना। तो W max और क्या बन जाएगा, W max can also be written as minus 2.303 nRT log to the base 10। अभी V2 by V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, P1 by P2। ये रहा आपका दूसरा W मैक्स। अब बताओ किसको नहीं समझा, सब पूरा इक्वेशन अच्छे से समझ में आया कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप। अब ये लिख लो तुम लोग, और आज के लिए इतना काफी हो गया, ठीक है। चलो कैसे लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर W मैक्स। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे लिखते जाओ, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर W मैक्स, फटाफट, अभी तुम लोग को 15 मिनट ये लिखने में ही चला जाएगा, और मैं इतना ही सिखाऊंगी, शाम को हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। लिखा हेडिंग। अब उसका जो डायग्राम है ना, वो बीकर और सिलेंडर वाला, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 69। वहां पे जाके मस्त में आराम से घर पर ड्रॉ कर लेना, चाहिए तो 2-3 लाइन छोड़ दो। चलो अभी इधर से स्टार्ट करो। W डायग्राम का इज पेज इक्वल्स टू, नंबर क्या है मिस? डायग्राम का पेज नंबर है 69। अरे वो सिलेंडर्स ही बने हुए जो मैंने बनाए थे ना, वैसे ही है, घर पे बना अच्छा लो आराम से। हाँ ठीक है, चलो। W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। मैं जैसे बोलती हूँ वैसे लिखो, W is equals to minus P external delta V. Therefore, dW is equals to minus P external dV. But P external is equals to P minus dP. अब ये लिखना है ना, इक्वेशन 1 और 2 लिखना है कि डायरेक्टली समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या करना है बोलो। लिखेंगे ना इक्वेशन। हाँ हाँ ठीक है, तो इधर लिखो, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 2 into 1, substituting 2 into 1। उसके बाद ये लिखो dw is equals to minus p minus dp। यहाँ तक पूरा लिखो, किधर तक, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अभी इक्वेशन नंबर 3 तक लिखो।
उसके नीचे का नहीं लिखना, ठीक है? इक्वेशन नंबर 3 तक लिखो। dw is equals to minus pdv। हो जाएगा तो बोलो। हाँ, इट्स डन। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 लिखा। अब ये इंटीग्रेशन मत लिखो, उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV is equals to nRT, therefore P is equals to nRT upon V। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग 4 into 3। आराम से समझ के लिखो। सब्स्टिट्यूटिंग 4 into 3। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो। dw is equals to minus nRT upon V into dv। इतना ही लिखना, पहले इतना ही लिखो इधर तक। हो गया। हो गया बच्चों? कोई पीछे तो नहीं रह गया? रुक जाते 1 मिनट, सबका हो जाने दो। डन? चलो अभी लिखो इंटीग्रेटिंग the above equation within the limits v1 to v2 and 0 to w max। इंटीग्रेशन का मतलब समझा सर? आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया। इट इज द समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। integrating the above equation within the limits v1 to v2 and 0 to w max, where v1 is equals to initial volume, v2 is equals to फाइनल वॉल्यूम। इतना लिख दो ताकि आपको याद रहे। और ये 0 to w max तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिए? सबका हो गया अच्छे से? चलो अभी पेज टर्न करती हूँ। अभी इंटीग्रेशन इधर से अप्लाई हुआ ना, अभी यहाँ से कॉपी करते जाओ। ये इंटीग्रेशन लिखो और ये फॉर्मूला है, चाहिए तो लिख के रख लो ताकि आपको याद रहे। इफ यू वांट ऐसे साइड में कर दो इसको फॉर्मूला। रुको क्लिप लगा देती हूँ, पेज उड़ रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करने के बाद ये आएगा। जैसा है वैसे का वैसे लिख डालो। चाहिए तो ये एक स्टेप बढ़ा दो। बढ़ाने का एक है ये स्टेप, ln v2 माइनस ln v1। कि ये समझ हो गया? जल्दी बोलो तो ये कैंसिल करती हूँ। तो लिख दो, छोड़ो लिख दो, नहीं तो छोड़ो। w max is equals to minus nRT ln शी बाबा nRT के बाद ये है ln v2 माइनस 1। लिखना है तो लिखो, नहीं तो स्किप कर दो वो स्टेप और ये पूरा कॉपी करो अच्छे से। ऊपर का स्टेप हुआ ना तो थोड़ा नीचे रखती हूँ इस टाइम ताकि दिखे तुमको अच्छे से। दिख रहा है ना? ln का मतलब लॉग ही रहता है, नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल वाला।
आप अभी साइंटिफिक कैलसी का भी यूज करोगे ना, तभी देखना उसमें रहता है डायरेक्टली लॉग टू द बेस ई, तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम लोग जो लॉग यूज करते हैं वो लॉग टू द बेस 10 वाला है, तो हमारे आंसर सारे मल्टीप्लाइड किए गए आते हैं, इसलिए हम लोग उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैमरा नीचे मैम कैमरा हाँ थोड़ा ऊपर ऊपर लो। ओके ओके ओके। ओके और ये दोनों इक्वेशन को एकदम रट लेना है। पता है व्हाट इज n? n is equals to number of moles, r गैस कांस्टेंट है, उसका फिक्स्ड वैल्यू लिख के रखो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये दिया नहीं रहता है। T इज टेम्परेचर, ये तो पता है, एंड वॉल्यूम और प्रेशर भी पता है, लिख लेना 8.314 joules per Kelvin per mole। If everybody done, just write down done in the chat box, बच्चों। And I hope you all understood this equation, this expression, very very important। ये 4 मार्क्स के लिए पूछते ही है। Okay, I think most of you have completed। एक सम ले लूं क्या छोटा सा? ना अभी 8 मिनट्स है। सम ले लूं एक एकदम छोटा सा, W इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा V पे। नहीं क्यों? एकदम छोटा है, खाली मल्टीप्लाई करने का है बस। कितने बजे लेक्चर है? 12 को ना, अभी 7 मिनट अभी है 12। ना। क्वेश्चन तो लिख लो, चाहे तो शाम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लो, चलेगा? हाँ क्वेश्चन लिख लो, शाम को सॉल्व करते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट डाउन। पहले देखो मैं कैसे सिखाती हूँ आपको। पहले सॉल्व एग्जाम्पल सारे हम लोग लॉग से सॉल्व करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट के पीछे के करते हैं, क्योंकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक का एक ड्रॉबैक ये है कि न्यूमेरिकल्स बहुत कम दिए हैं। इफ यू सी लास्ट ईयर्स का टेक्स्ट बुक, देयर आर 40 न्यूमेरिकल्स पर चैप्टर, टेक्स्ट के पीछे के हैं, और सॉल्व एग्जाम्पल्स वो अलग। तो वो बच्चे लोग को ना न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से आते थे, क्योंकि वो बहुत सॉल्व करते थे। आपकी बुक में 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है। दैट इज आई एम टेकिंग योर solved example also with respect to log books। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो 3 moles of an ideal gas, 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 dm cube to 20 dm cube। dm क्यूब और लीटर में क्या डिफरेंस है? dm क्यूब और लीटर में क्या डिफरेंस है? बोलो। H2O और वाटर में क्या डिफरेंस है? बताओ। कुछ नहीं, सेम है ना? तो डीएम क्यूब और लीटर भी सेम है, देयर इज सेम नो है मिस वो। डिफरेंस, याद रखना। हाँ भूलो नहीं ये सब टर्म्स,
छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बड़ी बड़ी चीजें नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, एकदम बारीक बारीक चीजें याद रखो। ठीक है, क्या लिखा, आइसोथर्मली फ्रॉम 15 dm cube to 20 dm cube at constant external pressure of, at constant external pressure of 1.2 bar, 1.2 bar, estimate the amount of work in, estimate the amount of work in dm cube bar, Estimate the amount. estimate the amount of work in dm cube bar and joules. ये शाम को करेंगे, ठीक है, मुझे याद दिला देना, विल डू इट इन द इवनिंग। चलो, आज के लेक्चर में कुछ डाउट है, ये एक्सप्रेशन सब अच्छे समझ में आ गया? इसके ऊपर जितने सम्स रहेंगे ना वो ले लेती हूँ शाम को, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आई विल टेल यू द पेज नंबर, वी आर नाउ ऑन पेज नंबर 70 का आधा हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग पढ़ना भी चालू करो। एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो मिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन तो कुछ है नहीं पूछने जैसा, ऑलरेडी वो खाली वर्क डन और वही सिखाया था और एक्सप्रेशन सिखाया, तो ठीक है, तो स्टॉप करते हैं लेक्चर, 3 मिनट ही बचा है वैसे भी, तो इट्स फाइन। चलो, सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, I mean. बाय, थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग नाइसली, वेलकम।